अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज समीरा, योर होस्ट एंड एंकर पर्सन। और आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद हबीबुल्लाह और इन्होंने हमें ज्वाइन किया है इस्लामाबाद से और ये मोटिवेशनल स्पीकर हैं। इसके अलावा ये कंट्री हेड हैं एक अदारे के और वो रहेगा एक सरप्राइज़। और ये मैं चाहूँगी कि हबीबुल्लाह इसको इंट्रोड्यूस करवाएं और उसमें क्या सर्विसेज दी जा रही हैं। और मैं बस इतना मेंशन करना चाहूँगी कि यूके में हमारे ट्रेनर होते हैं अली आसिफ, उनके जो अली आसिफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, उनका एक प्रोजेक्ट है जो उन्होंने पाकिस्तान में शुरू किया। और आई वुड लाइक के हबीबुल्लाह जो हैं वो इसके बारे में हमें बताएं, एलेबोरेट करें कि वो क्या सर्विसेज दे रहे हैं, क्या देना चाहते हैं, उनका क्या जो है विजन है और उनके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। अब वार्म वेलकम टू आवर शो हबीबुल्लाह। Samara, thank you so much for the brief introduction. And guys, I hope you guys are doing great. Well, ACE is basically is Ali Asif Center of Excellence. It is founded by Microsoft Speakers Club Vice President, Mr. Ali Asif. Plus, he is also the Chief Operating Officer of LC Group London. And also he's working with JP Morgan. Plus, he's also the founder and director of ACE. Now, ACE has sub-avenues as well. One of them is Al-Tabibi Foundation, and the other one is Illumination. Illumination is social and digital agency, and we intend to provide end-to-end business solution, digital business solutions to different entrepreneurs, to different businesses, SMEs, and small and big businesses. So that's pretty much about this platform. And Alhamdulillah, I'm working as the country head, and obviously Samara is also the part of the team. And yeah, that's pretty much about it. Yeah, thank you so much, Habibullah, for acknowledging my services. I would like you just give us a brief, you can say, description about the work or the services which we are offering over there. Okay. And then we will move towards our topic, that is situation handling. Okay, so you have to bear with my cough today. So the thing is, under Illumination, what we do, we basically, like after pandemic, a lot of businesses, it is going to be, उनकी जो है ना एक मजबूरी बन जाए कि they would have to go online, they would have to sell online because the behavior of the consumer is being changing now. Google did, there was an article that was, reading yesterday. कि Google ने डेटा जो प्रोवाइड किया है पाकिस्तान के अंदर 40 to 45% रिसर्च बढ़ गई है regarding grocery stores, regarding online shopping about clothes and all that. So while the behavior of the consumer is changed, so traditional business will not exist. Traditional types of business, they will either they would have to change the type of the businesses, or either they would have to change the methods of the doing businesses. Otherwise they will just go out of the market. So Illumination is basically helping all those businesses to grow. We would help them grow online, to provide them social media platform and to support them. And we have a proper team in Italy, we have proper team in UAE, and we have a team in United Kingdom, and we have team in Pakistan as well. And our purpose is to basically provide end-to-end solution. Just social media के ऊपर graphics की post लगाना नहीं है, but so we have like 4 USPs. Number one, we provide to our customer global experience, and then number 2, we go for the lead generation, because if the customer is growing, we will grow as well. And then we go for the sales consultation, how a customer can grow his sales. And then number 4, it's called so a digital agency it should not be just social media marketing or something like that. It should be more than that. If a customer is believing in you, तो ऐसा नहीं है कि आप 1-2 महीना उसकी marketing करके आप उसको छोड़ दें, but it's like leading them all the way to make them a success story, to build them into a brand. So we are basically trying to help businesses to develop into a brand at a national and a global level.
Yeah, that's great. So but actually, we guys are in situation, and illumination is going to teach us how to handle the situation, and they are going to help us in situation handling. So coming towards our topic, I would like कि हबीबुल्ला अगर आप थोड़ा सा elaborate करते हैं what is situation actually, और situation handling कितनी ज़रूरी skill है और ये कैसे develop हो सकती है. हम इसके सारे parts को देखेंगे. First we will start कि इसको थोड़ा सा आप elaborate करें इस topic को. अच्छा, सिचुएशन हैंडलिंग जो है, सबसे पहले तो हम अंडरस्टैंड करते हैं कि सिचुएशन होती क्या है, किस तरह की जी सिचुएशन होती जी जी है। बिल्कुल बिल्कुल. अगर कोई इंसान ये एक्सपेक्ट करता है कि उसकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सिचुएशंस होंगी तो ये गलत है, और अगर कोई इंसान ये एक्सपेक्ट करता है कि उसकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव सिचुएशंस होगी तो ये भी गलत है। इट्स अप एंड डाउन, कभी पॉजिटिव सिचुएशंस होगी, कभी नेगेटिव सिचुएशंस होंगी, कभी अच्छी सिचुएशंस होंगी, कभी बुरी सिचुएशंस होंगी, कभी हालात आपके कंट्रोल में होंगे, कभी आप हालात के कंट्रोल में होंगे, ठीक है। तो इट गोज वाइस वर्सा। अब बचपन में आपने अपने बड़ों को सुना होगा कि दुआ मांगते थे, ठीक है, कि या अल्लाह जो है ना हमें अमीर कर दे, हमें घर दे दे, हमें पैसे दे दे, ठीक है, हमारी जिंदगी में कभी मुश्किलात ना आए। अब ये जो सेंटेंस है, ये जो दुआ है कि हमारी जिंदगी में कभी मुश्किलात ना आए, मैं कहता हूँ ये दुआ नहीं मांगनी चाहिए, कि ये दुआ वैलिड ही नहीं है, ठीक है। ये चैलेंज करती है डायरेक्टली, एक नेचर को चैलेंज करती है। किस तरह से? अल्लाह ताला ने कहा कि इंसान की जिंदगी के अंदर एक अप एंड डाउन रहेगा, ठीक है। दिस इज द सर्कल ऑफ लाइफ, दिस इज द सोल ऑफ लाइफ, दिस इज द एसेंस ऑफ लाइफ। तो आप दुआ किस तरह से मांगे कि या अल्लाह मुश्किलात तो आनी है, चैलेंजेस तो आने हैं, तो बस मुझे हिम्मत दे दे उन चैलेंजेस का सामना करने के लिए, ठीक है। सो सिचुएशन हैंडलिंग के लिए सबसे पहला जो स्टेप है टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, कि ये सिचुएशन जो आई है आइदर इट्स बाय नेचर और it's by my own mistake or it was just supposed to happen. And the number two, when any situation happens into your life, let's say it's a negative situation, now it's not about what happens into your life, it's about how do you react to it. आपका behavior क्या होता है? आप उसके ऊपर जो है वो पैरानॉइड तो नहीं हो जाते, आप उसके ऊपर अपना हाइपर तो नहीं हो जाते, ठीक है, आप कंट्रोल लूज तो नहीं कर जाते। तो यहाँ पे दो चीजें हैं समारा, देयर आर थिंग्स दैट ह्यूमंस कैन कंट्रोल एंड देयर आर थिंग्स दैट ह्यूमन कैन नॉट कंट्रोल। सो मोस्ट ऑफ द पीपल व्हाट दे डू, दे स्टार्ट फोकसिंग ऑन द थिंग्स दैट दे कैन नॉट कंट्रोल। वो सारी उन चीजों को लेके बैठ जाते हैं जो उनके कंट्रोल में नहीं होती, बिल्कुल, ठीक है, और उन चीजों को छोड़ देते हैं जो उनके कंट्रोल में होती हैं। सो आई गेस नंबर 3 चीज जो है जो लोगों को करनी चाहिए, people need to work on the things that they can control, that they can do, that they have the capacity to do, जो उनके डोमेन के अंदर आती है, ठीक है। Number 4, whenever such situations happen into your life, what happens? People around you, they matter a lot. People start judging you, maybe by your character, maybe by your personality, maybe by your wealth, maybe by your color, maybe by your caste, maybe by your nationality, maybe by your or regionality or wherever you belong to. तो वहां पे we do not have to listen to the negative people. We do have to listen to positive people, but we don't have to listen to the negative people. And maximum, very first step, try your level best to get out of the negative people's community. क्योंकि इस सिचुएशन के अंदर ज्यादा लोग डिस्ट्रॉय या एक्सप्लॉइट होते हैं, वो अपनी वजह से नहीं, वो उनके इर्द लोगों की वजह से होते हैं। खुद इंसान का जब नुकसान होता है या उसके साथ कुछ बुरा होता है, ठीक है, तो वो शायद बर्दाश्त कर जाता है और वो पी जाता है उसको, लेकिन उसको लोग रिमाइंड करवाते हैं, उसको बार बार रिमाइंडर देते हैं, दोज नेगेटिव पीपल दे रिमाइंड हिम, ठीक है। सो ही नीड्स टू गेट अवे फ्रॉम दैट पीपल। आवर प्रॉफिट सल्लम, व्हेन सिचुएशंस वर बैड फॉर हिम, पीपल, लोगों ने इतना तंग करना शुरू कर दिया कि पत्थर बरसाने शुरू कर दिए, तो फिर अल्लाह ने कहा कि हिजरत कर जाए, शहर छोड़ दिया। सो sometimes change your place, change your community, change your environment, change your air, change your circle around you, and that will change your situation around. Okay, so Habibullah, the life is 10% of what happens to us and 90% how we react to it. इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? I guess it's 98%. I would say that seriously, and thank you so much for quoting this quotation. Exactly ऐसे ही होता है, ठीक है। हमारी लाइफ के अंदर चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है,
वो हमारे खुद के एक्शन से होता है, ठीक है। हम अगर बहुत ज्यादा चीजों को रिएक्ट कर जाए तो वो चीजें उसी तरह से हमें वापस बाउंस बैक होकर रिजल्ट्स हमें देंगी, ठीक है। सो दिस इज समथिंग रियली रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एज वेल, that the kind of energy we will emit into the situations, it will bounce back in the same way, in the same type. अगर हम नेगेटिव एनर्जी बाउंस करेंगे 90%, तो 90% नेगेटिव रिजल्ट्स आएंगे, और अगर हम 90% पॉजिटिव एनर्जी इमिट करेंगे तो 90% पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे. So I totally agree with you. It's all about how you take things around you, how you think of the things, and how do you reply to the environment, how do you change your behavior to the environment, how do you change your behavior with the people around you, and that actually makes you the person of understanding, that makes you the person of trust, that makes you the person of somebody who is really mature, who has learned something in life in order to tackle that situation, in order to face that challenge. And I guess that's where exactly your talent comes, that's where exactly your energy comes, when things happen into your life. So agree with you. Habibullah, actually, I just got a situation. I parked my car outside, and someone is just giving the horn. They just want me to move it towards the other side. So I will be back in 1 minute, okay? And I Okay, just sure. want, okay, just give me 1 minute. I'll be continuing with the public, okay? So we were talking about situation handling, and situation handling is all about you know uh, understanding our environment, understanding our own capability, understanding our own soul, understanding our own brain, understanding our own thoughts, understanding our own what you call it our own aura. And exactly that kind of aura we have to protect, exactly that kind of energy we have to protect, exactly that kind of environment we have to be in. So sometimes if it happens, if unfortunately you're not in that type of energy system, or if you're not in that type of aura, or if you're not around those types of people, so what will happen? There comes the challenge for you, and there comes how you would react to that, there comes how you would be patient, there comes how you would be like अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन. प्लस बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम बहुत सारी चीज़ों को बाय डिफॉल्ट कर जाते हैं कि अच्छा ऐसी सिचुएशन हो तो इस सिचुएशन पे गुस्सा करना है, ऐसी सिचुएशन हो उस सिचुएशन पे हंसना है. आई थिंक इट वेरीज समटाइम्स. मेरे ख्याल से पीपल अराउंड अस और एनवायरनमेंट अराउंड अस is looking for kindness, it's looking for affection, it's looking for love, it's looking for that feeling of being valued. And if we would start being affectionate with that environment, or being affectionate with those people around us, and we would start being kind to them, that would allow us to be at a point in our life where we would definitely be valued by ourselves. तो लोग हमें वैल्यू करेंगे because we are valuing them and we are understanding them, we are giving them positive energy. So this is how the system of universe works, this is how the system of world works. And okay, so here's something really important. Sometimes people think that I've been doing so many positive things, but positive things are not happening to me, or I was really positive with this person but this person was not positive with me. In that situation, you need to understand one thing: you need to be good with anybody without expecting good in return, because being good is who you are, and being nice is who you are, being naive is who you are. So don't change yourself just because somebody did not appreciate it, somebody did not say what you call good to you, somebody did not good to you in return. Wait for the right time. When the right time comes, that good happens into your life sooner or later. And when that happens, sometimes it's coming from the same people, sometimes from the different people, sometimes from the same sometimes at the same time, or sometimes later on. But things do happen, and what we do,
our decisions, the decisions that we make, they do have results. Later on, they do have an impact on our lives. So that's pretty much about it. And if you guys have any question, do bump into a question, do write up a question, and just be positive, be productive, and start knowing yourself. I guess one of the best thing that you can do in your life is build a good relationship with your own self. In the process of, the race of success or the race of money or the race of material, in the process we lose ourselves, we forget ourselves, that who we are. And even if we have of all the wealth in the world, of all the money in the world, and of all the material in the world, we uh, we miss that part, that who we are. And when we start missing that part, what happens, we start falling into depression, we start falling into being deprived, and we start missing a lot of things into, we start missing that connection. So you need to build a connection with yourself. When you're going to start building connection with yourself, it would give you the better understanding of your own self. It would actually allow you to understand that who you are and what is your worth. I guess Samara is back. थैंक यू So सो मच, थैंक यू सो मच हबीबुल्ला फॉर हेल्पिंग मी. no, it's fine. एक्चुअली मैंने गाड़ी गलत पार्क कर दी थी, तो वो फिर रास्ता ब्लॉक हुआ था. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी. मुझे No, it's pretty perfect. It's pretty perfect. It's just life. स्टार्ट करते हैं. आप माइंड सेटअप कोच हैं, राइट? इस बारे में थोड़ा सा बताएं कि मतलब, क्योंकि माइंड सेटअप का और सिचुएशन हैंडलिंग का बहुत गहरा कनेक्शन है. सो आई जस्ट वांट कि आप किस तरह से लोगों को हेल्प आउट करते हैं टू एनहांस देयर स्किल्स व्हाइल यूजिंग द माइंड सेटअप थिंग. ओके, सबसे पहले माइंडसेट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं. ठीक है, माइंडसेट बेसिकली हम क्या सोचते हैं, ठीक है, और हम क्या प्रिडिक्ट करते हैं, हम क्या लर्न करते हैं, हम क्या अनलर्न करते हैं, और हम क्या रीलर्न करते हैं. ये 3 से 4 प्रोसेसेस होती है जिनके थ्रू हमारा ब्रेन कंसिस्टेंटली वर्क कर रहा होता है. समटाइम्स हमें चीजों का पता होता है और समटाइम्स अननोइंगली हमारा ब्रेन काम कर रहा होता है. और समटाइम्स ऐसा होता है कि हम किसी बंदे के ऊपर लेट से गुस्सा हो जाते हैं, ठीक है, और बाद में रियलाइज करते हैं कि यार ये गुस्सा किसी और का था, इसके ऊपर निकल गया. सो होता क्या है माइंडसेट. सबसे पहले तो आपका पॉजिटिव माइंडसेट बनता है आपकी पॉजिटिव सोच से. पॉजिटिव सोच कैसे आए और पॉजिटिव सोच सबसे पहले तो जरूरी क्यों है, इसके ऊपर मेरा 2 साल पहले सच टीवी पे एक इंटरव्यू भी हुआ था, उसकी वीडियो भी यूट्यूब पे पड़ी हुई है कि पॉजिटिव सोच जरूरी क्यों है. अगर आप पॉजिटिव होंगे, आप मुतमईन होंगे, आप खुश होंगे, और अगर आप खुश होंगे तो आप अच्छे भाई बन पाएंगे, आप अच्छे बेटे बन पाएंगे, आप अच्छे दोस्त बन पाएंगे, आप एक अच्छे इंसान बन पाएंगे. लेकिन अगर आपके अंदर नेगेटिविटी है, आपकी सोच नेगेटिव है, आपकी सोल नेगेटिव है, तो आप ना एक अच्छे दोस्त बनेंगे, आप एक ना अच्छे बेटे बनेंगे, ना अच्छे भाई बनेंगे, आप ना एक अच्छे इंसान होंगे. ठीक है. अच्छा, पॉजिटिव एनर्जी कहाँ से आती है, ठीक है, पॉजिटिविटी लाई कहाँ से जाए, उसके लिए प्रोफेसर जू जैंग, इरास्मस यूनिवर्सिटी ऑफ रॉटरडैम स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, उन्होंने एक एक्सरसाइज करवाई, फॉरगिविंग एक्सरसाइज. ठीक है. अब ऐसा होता है, मैं एक मियाँ बीवी की एग्जांपल देता हूँ. ठीक है, एक मियाँ बीवी है, ठीक है, सो वो घर से निकलते हैं. ठीक है, हस्बैंड जो है ना वो घर से निकलता है, बीवी जो है वो घर पे है. अब हस्बैंड घर से निकलता है सुबह, जब वो घर से बाहर निकलता है तो जनाब वो रास्ते में जो ना उसके गाड़ी वाला जो है ना वो बम करके चला जाता है. अब गाड़ी वाला चला जाता है, लेकिन वो गुस्सा और एनर्जी उसके माइंड में छोड़ जाता है, और ऐसी एनर्जी छोड़ के जाता है कि क्योंकि वो उसको पकड़ के मार तो सकता नहीं है. ठीक है, यहाँ उसे गालियां दे देगा, यहाँ उसे दिल में बुरा भला कह देगा. ठीक है, लेकिन महीने बाद भी कहीं बैठेगा ना तो कहेगा कि यार वो मैं फलाने लक्ष्मी चौक से गुजर रहा था ना, तो फलाने गाड़ी वाले ने ऐसे साइड कराई थी मुझे. ठीक है, क्योंकि वो नेगेटिविटी उसकी सोल का हिस्सा बन जाती है. जब तक उसको निकालेगा नहीं, वो उसकी सोल के अंदर रहेगी. अच्छा, उसके बाद क्या उसे कहते हैं, वो चला जाता है जनाब काम पे. ठीक है, काम पे जाता है तो किसी कोलीग ने कुछ ऐसा कह देता है जो उसको रिएक्ट में कुछ कर तो नहीं सकता, लेकिन दिल में कहता है कि यार ये क्या भला है, या बॉस कुछ कह देता है. वो बॉस को कुछ कह तो नहीं सकता रिटर्न में, लेकिन वो एनर्जी नेगेटिव अंदर रहती है. रिजेंटमेंट जिसे आप कहते हैं अंदर रहता है, वो नेगेटिव करता रहता है, नेगेटिविटी से जो है वो फील कर रहा है. एग्जैक्टली. अच्छा, फिर लेट्स से वो रेस्टोरेंट पे जाता है तो कोई वेटर उसके अंदर जो ना बम कर देता है, उसके ऊपर चाय कॉफी गिराता है. वो वेटर चूंकि गरीब है तो उसको कुछ कहेगा तो नहीं कि यार किसको गरीब है क्या कहूं, लेकिन वो नेगेटिविटी उसके अंदर रह जाएगी कि यार इसने मेरे कपड़े खराब कर दिए. अच्छा, ये वो सारा दिन वो नेगेटिविटी इकट्ठी करता है.
इसी तरह से घर में बीवी है, वो अपनी सास की बातें सुनती है, वो सास से लड़ तो नहीं सकती, लेकिन वो नेगेटिविटी अपने अंदर इकट्ठी करती रहती है, दिल में बुरा भला करती है, जैसे जिसे कहते हैं कुड़ती रहती है, ठीक है। बच्चे कुछ गलती करते हैं तो वो भी नेगेटिविटी जमा करती रहती है। अब ये दोनों जो है ना सारा दिन नेगेटिविटी इकट्ठी करते रहते हैं, शाम को जब इकट्ठे होते हैं तो एटम बम बने होते हैं, और जरा सी बात होती है तो फटते हैं, और उसका इम्पैक्ट औलाद पे पड़ता है, उसका इम्पैक्ट बच्चों पे पड़ता है, ठीक है। अच्छा सुमेरा, ये तो मैंने बता दिया कि नेगेटिव एनर्जी इकट्ठी होती कहाँ से है, ठीक है। अब जो प्रोफेसर जूज हैं ने एक्सरसाइज बताई, फॉरगिविंग एक्सरसाइज, उन्होंने कहा कि जब आप किसी को माफ करते हैं, जब आप किसी को फॉरगिव करते हैं तो आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, और ये हमारे दीन में भी है कि माफ कर देना चाहिए। उसके लिए एक्सरसाइज क्या करनी चाहिए, आप सुबह उठें, सुबह उठ के घर के किसी साइलेंट रूम में, ठीक है, बैठें, किसी भी पोजीशन में जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हैं आप बैठें। अक्सर लोग मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, आप किसी भी पोजीशन में बैठें, आंखें बंद करें और अल्लाह ताला से जो है वो कहें कि या अल्लाह, कल काफी लोगों ने मेरे साथ बुरा किया, मैं उन सबको माफ करता हूँ, ठीक है। और एक लंबा सा सांस लें और फिर सांस को छोड़ें, ठीक है, यू विल फील रिलैक्स्ड। दूसरा फिर सांस ब्रीथ इन करें और फिर अल्लाह ताला से कहें कि या अल्लाह, जिस तरह से अनजाने में लोगों ने मुझे तंग किया, इस तरह मैंने भी अनजाने में लोगों को तंग किया होगा, तो तू मुझे माफ कर दे। तो पहले प्रोसेस में आपने लोगों को माफ किया, दूसरे प्रोसेस में आपने अल्लाह से माफी मांग ली, बिल्कुल, ठीक है। अब होगा क्या, आप ये एक्सरसाइज जब एक हफ्ता करेंगे तो आप डेली जब माफी मांगना और मंगवाना शुरू करने को कहेंगे, या अल्लाह मैं गुस्सा करना ही ना छोड़ दूं, मैं डेली आता हूँ तेरी बारगाह में और मैं डेली जब उन लोगों को माफ करता हूँ, मैं अब गुस्सा करूंगा नहीं, क्योंकि लोगों ने जानबूझ के नहीं किया। तो आपको जब पता हो कि आपके साथ किसी ने जानबूझ के गलत नहीं किया, तो वो नेगेटिविटी दिल में ना रखा करें, वो रिजेंटमेंट दिल में ना रखा करें, उससे निकाल दिया करें। और निकालने का बेस्ट तरीका यही है, मेडिटेशन करें, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करें, एक्सरसाइज करें, ठीक है। अच्छा, इससे अब क्या हो गया, अब आते हैं उस पॉइंट की तरफ। इससे आपका क्या होगा, पहले सबसे पहले आपका माइंडसेट डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव माइंडसेट बिल्ड हो जाएगा। अब कहानी शुरू होती है कि माइंडसेट को अब चलाना कैसे। अब पॉजिटिव माइंडसेट आपका बिल्ड होना शुरू हो गया, आपको पता है कि नेगेटिविटी से कैसे आपने दूर रहना और आपने इसको पॉजिटिव कैसे रखना है, तरोताजा आपने इसको कैसे रखना है। तो दिस वाज वन ऑफ द फिलॉसफी दैट वाज मस्ट यू नो that was must to be shared with the people around here. अब उसके बाद आपकी लाइफ के अंदर चैलेंजेस आने ही आने हैं, आपके जो है वो लाइफ के अंदर अप्स एंड डाउन्स आने ही आने हैं, आपने प्रिपेयर्ड रहना उनके लिए, ठीक है। हमेशा अपने आप को प्रिपेयर रखें कि हर आने वाला सेकंड एक नया चैलेंज होगा। किसी को नहीं पता था कि पैंडेमिक आएगा, किसी को नहीं पता था कि ये 4 माह से भी ऊपर ले जाएगा, किसी को भी नहीं पता था कि ये डिफरेंट बिजनेसेस को क्रश कर जाएगा। नोबडी न्यू अबाउट इट, नोबडी वाज प्रिपेयर्ड, ठीक है। लेकिन क्या है, लोग मर तो नहीं गए, लोग जिंदा हैं, लोग जी रहे हैं, लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, डिफरेंट लाइफस्टाइल को अडॉप्ट कर रहे हैं, लोग बिजनेस भी कर रहे हैं, लोग कमा भी रहे हैं, ठीक है। कुछ फर्क है, कुछ कम कमा रहे हैं, कुछ ज्यादा कमा रहे हैं, कुछ अभी प्रोसेस में है कि किस तरह से इस नए एनवायरनमेंट को अडॉप्ट किया जाए। तो दूसरी चीज में जान, अडॉप्टेबल हो जाए, सिचुएशन को अडॉप्ट कर लें, आप इन्वायरमेंट को अडॉप्ट कर लें, फ्लेक्सिबल हो जाए। जब आप फ्लेक्सिबल होंगे तो क्या होगा, आपकी लाइफ के अंदर चीजों को अंडरस्टैंड करने की कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने की कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। जब आप सिचुएशन को अंडरस्टैंड करेंगे तो आपका माइंडसेट हमेशा जो है वो एक तवाजुन में रहेगा, एक तसलसल में रहेगा, एक कंसिस्टेंसी में रहेगा। अच्छा, क्वेश्चन आया यहाँ पे, आप पढ़ेंगे खुद या मैं इसको? आप पढ़े प्लीज। Hope for the best but ready for the worst. Negative fears rust our energy. Your comments please. अच्छा, फियर जो है ना, ये लाइफ का ना बड़ा कमाल का एक हिस्सा है। अगर जिंदगी में डर ना हो, ठीक है, मैं आपको मजे की बात बताता हूँ, हमारा जो दिमाग है ये इस तरह से प्रोग्राम हुआ, मैंने शायद उस दिन जब मैं सेशन दे रहा था उसमें भी शायद आपने सुना होगा कि हमारा दिमाग जो है ना वो मुश्किल कामों को करने के लिए तो बना ही नहीं है, बल्कि हमें ये मुश्किल कामों से बचाने के लिए बना है। हमें उन तमाम चीजों से बचाने के लिए बना है जो चीजें हमें हर्ट कर सकती हैं। इंसान ने जंगलों से झोंपड़ियां बनानी क्यों शुरू की? क्योंकि जंगलों में खतरनाक जानवर थे, तो खतरनाक जानवरों से बचने के लिए उसने झोंपड़ियां बनानी शुरू की। फिर इंसान ने जो है वो अपने घर के अंदर खंजर या औजार क्यों रखना शुरू किए कि कोई जानवर घर में ना घुस आए, ठीक है। फिर अब हर मुल्क की अपनी आर्मी भी है, तो ये फियर फैक्टर है, ठीक है। अब वो इसलिए नहीं कि आपके पास आर्मी होनी चाहिए, वो इसलिए है कि एक चैलेंज से निपटने के लिए, ठीक है, अगर चैलेंज आता है। तो
इंसान का दिमाग जो है वो बेसिकली फिर उसको वो डिफरेंट छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करता है। तो फियर जो है वो अब आपका सवाल था कि नेगेटिव फियर जो है, नो डाउट फियर को सर पे सवार नहीं हमने करना। पॉजिटिव फियर तो ये है कि यार मैंने अगर जो है वो अपने बच्चे के लिए खाना ना बनाया तो मेरा बच्चा भूखा रह जाएगा, ये पॉजिटिव फियर है। ठीक है, आपने खाना बनाना है ताकि आपका बच्चा जो है वो ही कैन फिल हिज बेली। ठीक है, नेगेटिव फियर क्या है कि आप सिर्फ सोचते ही रहे इसके बारे में, अगर मैंने ना बनाया तो भूखा रह जाएगा, दिल करे सारा दिन आप सोचते ही रहे और बच्चा सच्ची मुच्ची में भूखा रह जाए। तो उस फियर को सवार नहीं करना, उसके ऊपर एक्शन लेना है। ठीक है, कि अगेन फिर वही बात रिलेट करूंगा कि उसके अंदर आपने उन चीजों के ऊपर फोकस नहीं करना जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। कुछ चीजें नेचर के कंट्रोल में हैं और वो हमें नेचर के सपोर्ट ही रखनी चाहिए। जो हमारे कंट्रोल में है हमें उनके ऊपर फोकस करना चाहिए। बिल्कुल। व्हाट इज द बेस्ट वे टू हैंडल योरसेल्फ, योर माइंड एंड थॉट्स? अच्छा, अब खुद को हैंडल करने के लिए खुद को पहचानना बहुत जरूरी है। ठीक है, इंसान जो है ना दुनिया के तमाम लोगों से झूठ बोल सकता है, अपने आप से झूठ नहीं बोल सकता। जब वो शीशे के सामने खड़ा होता है ना तो उसको पता होता है कि वो कितना कमीना और कितना अच्छा है, सॉरी फॉर द वर्ड। ठीक है, लेकिन उसको पता होता है, ठीक है, कि मैं क्या हूँ। ठीक है, मैं कितना काला हूँ, मैं कितना सफेद हूँ। ठीक है, ही नोज दैट। सबसे पहले अपने आप के साथ सच बोलना सीखें। दूसरी चीज, अपनी कैपेसिटी को जाने, अपनी डोमेन को जाने, अपनी कैपेबिलिटी को जाने। ठीक है, जब आप अपनी कैपेबिलिटी को जान जाएंगे, जब आप अपनी कैपेसिटी को जान जाएंगे तो आपको डिसीजन मेकिंग आ जाएगी। जब आपको डिसीजन मेकिंग आएगी तो आपकी थॉट्स आपके कंट्रोल में आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, आपका माइंड आपके कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा, बिकॉज आपको डिसीजन मेकिंग आ गई है। आपको अपने बारे में पता है कि मैंने कहाँ यस कहना है, मैंने कहाँ नो कहना है, मैंने क्या खाना है, मैंने क्या नहीं खाना, मैंने कहाँ जाना है, मैंने कहाँ नहीं जाना, मैंने कौन सी जॉब करनी है, कौन सी जॉब नहीं करनी, मैंने कौन सा बिजनेस करना है, कौन सा बिजनेस नहीं करना। तो ये जो यस या नो के जो बिटवीन जो ग्रे लाइन होती है ना, इसके अंदर जब बंदा फंसा रहता है तो सारी जिंदगी फंसा ही रहता है। ठीक है, जब एक डिसीजन ले लिया तो फिर उसके ऊपर काम भी करना है फिर। ठीक है, मैं कहता हूँ दुनिया के सारे मेंटोर्स आ जाए ना, ठीक है, और एक बंदे को वो ट्रेन करें, जब तक वो बंदा खुद स्टेप नहीं लेगा। जैसे देखें आप कितनी मेहनत कर रही हैं, आप स्ट्रगल कर रही हैं, ठीक है, यू आर स्ट्राइविंग माशाल्लाह, एंड यू आर स्प्रेडिंग पॉजिटिविटी। I've seen your work, माशाल्लाह, you're putting up a lot of efforts, मेरा, ठीक है, and I mean good luck to you, whatever you want to create, create for the community WPTH के प्लेटफॉर्म से। आई गेस मैं कहता हूँ कि मैं हर उस इंसान का शुक्रगुजार हूँ जो इस सोसाइटी के लिए 1% भी कर रहा है, क्योंकि nobody has time to do that right now। किसी के पास टाइम नहीं है कि वो किसी के लिए पॉजिटिव वर्ड बोल दे, किसी की जो है वो हौसला अफजाई कर दे, किसी को अप्रिशिएट कर दे। और हमारे मुल्क में अप्रिसिएशन नहीं है। ठीक है, खैर जब आप इन सारे प्रोसेसेस के थ्रू गुजरते हैं तो आपको आपकी थॉट्स को भी कंट्रोल करना आ जाता है, आपको अपने आपके माइंड को भी कंट्रोल करना आ जाता है। ठीक है, अब इसके ऊपर आपने कंसिस्टेंट रहना है। ठीक है, क्योंकि आप कुछ भी सोचेंगे, आप कुछ भी करेंगे, उसका सबसे पहला इम्पैक्ट आपके खुद की जात पे जाएगा। जब आप किसी को गाली देते हैं, जब आप किसी के ऊपर गुस्सा करते हैं, तो आप उसको गाली नहीं दे रहे, आप अपना इमेज बता रहे हैं। ठीक है, आप खुद को अनवील कर रहे हैं कि आप कैसे इंसान हैं, आप गुस्से के अंदर कैसे जो है वो रिएक्ट करते हैं। ठीक है, आप खुशी के अंदर कैसे रिएक्ट करते हैं। ठीक है, आप डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर कैसे रिएक्ट करते हैं, उससे पता चलता है कि आप अपनी थॉट्स के कंट्रोल में हैं या आपकी थॉट्स आपके कंट्रोल में। बिल्कुल, लाइफ इज बट थॉट, थिंक पॉजिटिव गेट पॉजिटिव, थिंक नेगेटिव गेट नेगेटिव। एग्जैक्टली। अच्छा, मैंने जब आप गई थी गाड़ी मेरे ख्याल से पार्क करने, तो मैं उस टाइम बात कर रहा था ऑडियंस से कि आप अपनी बॉडी से देखें, हर इंसान एक एनर्जी लेके घूम रहा है, हर इंसान की अपनी एक एनर्जी है। ठीक है, आप जैसी एनर्जी एमिट करेंगे वैसी एनर्जी बाउंस बैक होके वापस आएगी। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ग्लास में आप दूध डालें और आपको पानी मिले, या कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप पानी डालें और आपको दूध मिले। ठीक है, जो आपके अंदर होगा वही आपको सोसाइटी से मिलेगा। आप जो चीज आप चाहती है ना वो देना शुरू कर दें। आप चाहते हैं कि आपको पॉजिटिविटी मिले, आप पॉजिटिविटी बांटना शुरू कर दें। आप चाहते हैं आपको सुकून मिले, आप सुकून बांटना शुरू कर दें। आप चाहते हैं आपको खुशी मिले, आप खुशियां बांटना शुरू कर दें।
ठीक है, आप जो चीज आप लाइफ में चाहते हैं, जैसी एनर्जी आप चाहते हैं, जैसी सोच आप चाहते हैं, पहले खुद को वैसा डेवलप करना शुरू कर दें। जब आप खुद को वैसा डेवलप करना शुरू कर देंगे तो उससे क्या होगा, आपकी दुनिया बदल जाएगी। आपकी दुनिया 7 बिलियन लोग नहीं है, आपकी दुनिया वही है जितना आप देखते हैं, जहां आप रहते हैं, आपकी दुनिया वही है। और वो किसने बदलनी है, वो आपने बदलनी है। ठीक है, अल्लाह ताला ने भी कहा है कि खुदा उनकी हालत नहीं बदलता जो अपनी हालत खुद नहीं बदलते। ठीक है, तो हमने खुद को चेंज करना है, हमने खुद को पॉजिटिव करना है। दुनिया का कोई भी इंसान आके दुनिया, अच्छा बुराई सिखाई जा सकती है, मैं आपको मजे की बात बताऊं, बुराई सिखाई जा सकती है, अच्छाई नहीं सिखाई जा सकती। अच्छाई बताई जा सकती है, सिखाई नहीं जा सकती। बिल्कुल। ठीक है, दुनिया का कोई भी मजहब, दुनिया का कोई भी आलमे दीन, कोई भी स्कॉलर आपको अच्छा इंसान नहीं बना सकता। अगर ऐसा होता तो जब हमारा रिलीजन आया, इस्लाम आया, तो अबू जहल की मिसाल सबके सामने है। ठीक है, तो कहने का मकसद ये कि जब तक अंदर से नहीं ना उठेगी, जब तक वो तड़प अंदर से नहीं आएगी, तब तक जो है वो आप स्टेप नहीं लेंगे। जब तक स्टेप नहीं लेंगे तब तक आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी दूर दूर तक नजर नहीं आएगी, और आपकी लाइफ में वही लोग होंगे जो नेगेटिव हैं, बिकॉज आप खुद नेगेटिव हैं। तो खुद को पॉजिटिव रखें, अच्छे रहें, प्रोडक्टिव रहें, अपने टाइम का अच्छा इस्तेमाल करें, एंड दैट वुड मेक यू अट्रैक्ट द राइट काइंड ऑफ पीपल अराउंड यू। जी, मैं सफ़ा इश्तियाक का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, उन्होंने आज हमें फर्स्ट डे जो है ज्वाइन किया है। वेल सेड हबीब, आई थिंक शी इज़ फ्रॉम योर साइड। सफ़ा हबीब इश्तियाक, सफ़ा इश्तियाक जी। कोई कैसे कोई शाबाश नहीं देता जब आप अच्छा काम करते हैं, तो आप मुंह और आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ कमेंट इज दिस। ओके हबीब, हम इस बारे में बात करते हैं कि हाउ डू यू हैंडल योर स्ट्रेस एंड इम्पॉसिबल सिचुएशन, प्लीज शेयर। आप अपनी जाती जिंदगी से हमें कुछ अच्छा बताइए। अच्छा अच्छा, हबीब भाई, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। हाउ डू आई हैंडल स्ट्रेस? सबसे पहले तो आई अंडरस्टैंड द सिचुएशन की जो स्ट्रेस, मैं जिस स्ट्रेस में हूँ किस वजह से हूँ, इसके अंदर मेरा कितना किरदार मैंने अदा किया है इस स्ट्रेस को पालने में। ठीक है, तो उसको एनालाइज करता हूँ। ठीक है, फिर कोशिश करता हूँ कि मैं जल्द से जल्द किसी ना किसी पॉजिटिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाऊँ, चाहे वो रीडिंग है, चाहे वो किसी अच्छे इंसान से बात करना है। ठीक है, चाहे कोई भी अच्छी कोई वीडियो उठा के देख लें, जैसे WPTH के प्लेटफॉर्म पे काफी सारी वीडियोस पड़ी होंगी, कोई भी अच्छी पॉजिटिव वीडियो उठा के आप देख लें। ठीक है, इट्स थैंक यू। एनीथिंग दैट ड्राइव्स यू टू बी पॉजिटिव। ठीक है, तो आप पहला स्टेप, दिस इज व्हाट आई डू। ठीक है, दिस इज व्हाट आई डू। दूसरा, आप अपने आप के साथ कमिट कर लें कि यार अच्छा, इसके अंदर जितनी गलती मैंने की, अब नेक्स्ट टाइम मैं वो गलती रिपीट नहीं करूंगा। ठीक है, तो मैं आई डू दैट टू माई सेल्फ। ठीक है, तीसरा, मैं एक्सरसाइज करता हूँ। ठीक है, मैं रनिंग स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, जॉगिंग स्टार्ट कर देता हूँ, आई स्टार्ट वॉकिंग, मैं वॉकिंग या पुशअप स्टार्ट कर देता हूँ। अपने ब्लड को जो है ना वो मैं मूवमेंट में रखता हूँ। ठीक है, सो दैट आई स्टे पॉजिटिव। तो जितना आपका ब्लड मूवमेंट में रहता है, आप पॉजिटिव सोचते हैं। आप किसी दिन एक्सपीरियंस करके देखिएगा कि आप कभी पार्क में जाके ना एक चक्कर लगा के हैं, तो आपका दिमाग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचना शुरू कर देगा, बिकॉज आपका ब्लड जो है वो मूवमेंट में आ गया, हरारत में आ गया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद सिचुएशन को कैसे हैंडल करता हूँ। ठीक है, मुझे अब तक मेरी लाइफ में इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि स्ट्रेस या परेशानी किसी भी मामले का हल नहीं है, बल्कि उससे बाहर कैसे निकलना है उसका हल निकालना बहुत जरूरी है। और अगेन वही बात अभी भाई रिपीट करके बताऊंगा कि आप के कंट्रोल में जो चीजें, आप उनके ऊपर काम करना शुरू कर दें। आप इंतहाई स्ट्रेस में, बहुत परेशान हैं, आप सोचे कि आपके जो है वो कंट्रोल में कौन सी चीजें हैं। ठीक है, आप किन चीजों को खुद कर सकते हैं। जब आप उन चीजों को करना शुरू कर देंगे तो आपका फोकस नेगेटिव चीजों से ऐसे ही हटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपका माइंड बिजी हो जाएगा पॉजिटिविटी करने में, आपका माइंड बिजी हो जाएगा उन चीजों को करने में जिनमें आप एक्सपर्ट हैं। ठीक है, तो दिस इज व्हाट you can do when you are highly stressed or when you are highly in kind of tension or something like that. अबीबुल्ला, कई दफ़ा ऐसे होता है कि सब कुछ बड़ा सही चल रहा होता है, आपने पूरा अपना डे जो होता है वो प्लान किया होता है, लेकिन कई दफ़ा कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसकी वजह से आपको बिल्कुल समझ नहीं आता कि आप अब इसको कैसे हैंडल करें, उसको एडजस्ट करना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। इस हवाले से बताएं, और उससे पूरा सब कुछ ऐसे लगता है जैसे सब कुछ ही बिखर गया, मतलब इस तरह की सिचुएशन को कैसे हम हैंडल कर सकते हैं और फिर अपने असाब पे भी काबू रख सकते हैं, और नेगेटिव एनर्जीज को इमर्ज नहीं होने देना चाहते हम, तो उसको कैसे मतलब पॉसिबल बनाएं?
अच्छा सुमेरा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और ये बड़ी कॉमन चीज़ है हमारी लाइफ के अंदर ना। हमारा लेट्स से सारा दिन बहुत अच्छा जा रहा हो ना, शाम को कोई एक छोटा सा मोमेंट ऐसा हो जाए ना तो हम परेशान होके बैठ जाते हैं। भाई परेशान होना या किसी हल चीज़ का आपके प्लान के मुताबिक ना होना, इट्स नेचुरल। थिंग्स विल नेवर गो अकॉर्डिंग टू योर प्लान। अब आपने जैसे अभी आपने गाड़ी पार्क की थी कहीं पे, तो आपको नहीं पता था कि कोई बंदा आके हॉकिंग शुरू करेगा। थिंग्स बिल्कुल नेवर गो अकॉर्डिंग टू योर प्लान। ठीक है, तो ये चीज अपने माइंड में आज बिठा लें कि इट्स नेचुरल। ये चीज नेचुरल है। कुछ चीजों को लेट गो करना सीख जाए लाइफ के अंदर। ठीक है, जो चीजें आपको बॉदर करती हैं कभी कभी उनको लेट गो कर देना चाहिए। भाई अगर आज नहीं हुआ और आप जिंदा हैं तो यू कैन डू इट अगेन। ठीक है, दोबारा वो टाइम आएगा, दोबारा आपके पास एनर्जी है, आपके पास टाइम है, आपके पास जो है वो सोच है आगे बढ़ने वाली, आगे करने वाली। आप प्रोडक्टिव हैं तो आप उसको दोबारा कर सकते हैं। बट इट ऑल डिपेंड्स कि आप जो है वो उसको डाइजेस्ट कितना करते हैं। आपको डाइजेस्ट करना होगा कि नहीं हुआ तो यार क्या हो गया, टेक इट इजी। इजी लेना है आपने उसको। ठीक है, अगर नहीं हुआ तो उसके उसकी जगह पे सारे दिन के अंदर 90% चीजें अच्छी भी तो हुई है ना। अगर 10% नहीं भी हो सकी तो लीव दैट टू अल्लाह। ठीक है, और लेट इट गो। ठीक है, अगले दिन कर ये लेंगे। भी एक बड़ी अच्छी आदत है, ये भी एक बड़ी अच्छी आदत है। मेरे ख्याल से इसकी भी प्रैक्टिस होती है और आहिस्ता आहिस्ता आप अपना स्टेमिना बिल्ड करते हैं। लेट गो करना इतना आसान नहीं एग्जैक्टली है, मुश्किल चाहे वो होता है, इट्स टफ। अच्छा एक बिल्कुल। और मेरा आपको बात बताऊं, अच्छी चीज कोई भी है ना वो टफ है, हाँ ऐसे ही चैलेंजिंग है। ऐसे ठीक है, ही आसान नहीं है। लोग समझते हैं कि बस जो है ना वो हलवा है और पका के हमें प्लेट में रख, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, कोई बंदा दानिश्वरी की बात करता है, किसी भी दानिश्वर को आप उठा के देख लें, अशफाक अहमद साहब को उठा के देख लें, ठीक है, या कोई भी अच्छे जो राइटर्स हैं उनको आप उठा, उनकी लाइफ को स्टडी करें। ठीक है, उनकी लाइफ को आप स्टडी करेंगे तो देखेंगे कि उनकी लाइफ के अंदर बड़े बड़े चैलेंजेस थे। अली आसिफ की अगर मैं बात करूं तो अली आसिफ जो है वो बड़े हम्बल बैकग्राउंड से हैं। देर ऐसे ही देर वॉज अ टाइम के उनके पास खाने के पैसे नहीं थे। आज वो माइक्रोसॉफ्ट स्पीकर्स क्लब के वाइस प्रेसिडेंट हैं और पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहला पाकिस्तानी है। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि ही बिलीव्ड इन हिज एनर्जी, ही बिलीव्ड कि यार एक जगह पे मैंने पहुंचना है। लेकिन वो ऐसे वो तभी होता है जब हम चीजों को लेट गो करना शुरू कर दें। जब हम हर चीज के ऊपर जो है वो पिन पॉइंट करना अपने आप को शुरू कर देंगे ना, तो हमारी एनर्जी भी नेगेटिव होती जाएगी, हमारी कैपेबिलिटी भी जो है वो लूज होती जाएगी। ठीक है, और हम डिप्रेशन का शिकार होते जाएंगे। बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ऐसे है। आपकी उम्र पे सवाल उठ गया, माशाल्लाह आप बहुत सियानी बातें कर रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि आपकी उम्र कितनी है और ज्यादा जहनी दबाव कब आया और कैसे इस पर काबू पाया? अच्छा, ये ये हमारे पर्सनल लाइफ से हमारे क्वेश्चंस हैं। ये अच्छा मैं आपको बताता कैप्टन हूँ। साहब हैं, मैं इनका थोड़ा तारुफ करा दूं। ये गुजरावाला से हैं, स्विक सेंटर है वहाँ पे, और ये वहाँ पे उसको डील कर रहे हैं पूरे प्लाजा को। वो काफी बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट है और एडमिनिस्ट्रेशन में होते हैं ये, और माशाल्लाह सीनियर हैं, एक्सपीरियंस हैं। और शायद इस वजह से वो पूछ रहे हैं कि माशाल्लाह आप कितना आपके पास नॉलेज है, तो अब वो चेक कर रहे हैं कि आपके पास तजर्बा कितना है। अच्छा, आई एम 28 और तकरीबन इट्स बीन ऑलमोस्ट 13 years since I have been into practical life. ठीक है, because I was like 16 or 17 जब मैंने स्टार्ट कर दिया था। I started working and I started working with people and I traveled into different countries as well. सबसे ज्यादा स्ट्रेस का मोमेंट कब आया लाइफ के अंदर? सो आई बिल्ट अ कंपनी, मैंने एक कंपनी बनाई और बहुत मेहनत से। अब अभी बोला जरा बताइएगा ये कब बनाई, ये कब की बात है? 2016 के एंड पे। ठीक है, ओके और आई यूज टू वर्क ऑन इट 22 आवर्स, 22 घंटे में उसके ऊपर काम करता होता था। आई बिल्ट अ रियली बिग टीम ऑन दैट। मेरे पास जो पैसे होते थे मैं उसके ऊपर लगा देता था। ठीक है, like I spent, like invested my time, my energy, my money, and my trust, each and everything in there. So within the span of 2 years, it collapsed करके ऐसा collapse कि मैं जीरो पे भी नहीं बल्कि नेगेटिव में चला गया। ठीक है, और वो बड़ा हाई टाइम था मेरे स्ट्रेस का। ठीक है, लेकिन उस टाइम पे आके ना एक ही सोच माइंड में आई थी, क्योंकि मैंने मेरी शायद सबसे बड़ी जो मेरे पास ताकत है ना अल्लाह ताला ने जो दी है, वो ये कि मैं कभी हिम्मत नहीं हारता। आई वुड नेवर एवर एवर गिव अप। तो मैंने कहा कि जिस अल्लाह ने वो दिया था ना वो दोबारा दे देगा। ठीक है, और जब आपकी जिंदगी में वर्स्ट टाइम आता है ना तो वो बहुत बेस्ट टाइम के लिए आता है, वो आपको रीबिल्ड करने के लिए आता है। क्योंकि मतलब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ,
आपने जिस पॉइंट पे, आप पहली सीढ़ी पे खड़े हैं और आपने 10वीं सीढ़ी पे पहुंचना है। ये सब बड़ी आसान मिसाल देने लोगों को। अब आप छोटे बच्चे हैं, अगर छोटा बच्चा है तो वो रेंग रेंग के जाएगा, उसको टाइम लगेगा। और अगर आप उस टाइम को कंसाइज करना चाहते हैं तो आपको पहले बड़ा होना पड़ेगा, उस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, उसके बाद उस टाइम को कंसाइज करके आप 10वीं सीढ़ी पे आसानी से पहुंच जाएंगे। ठीक है, लेकिन जब तक आप उस प्रोसेस से नहीं गुजरेंगे तो ये चीजें जो तोड़ती है ना हमें, ये जो नुकसान होते हैं, ये जो लॉसेस होते हैं, ये जब हम स्ट्रेस में आते हैं तो ये प्रोसेस होता है। इट्स द पार्ट ऑफ द प्रोसेस एंड इट्स द ब्यूटी ऑफ लाइफ। ठीक है, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। दीन इस्लाम जो है, ठीक है, 23 ईयर्स के अरसे में फैला। अब अल्लाह का दीन है, विद इन 1 डे क्यों नहीं फैला, विद इन सेकेंड्स क्यों नहीं फैला? अल्लाह तो चाहता कुछ भी हो सकता था, लेकिन नहीं, सबसे बेस्ट चीज के लिए ज्यादा टाइम लगा, ये हमें बताना था। ठीक है, तो एक प्रोसेस है, जब तक उस प्रोसेस के थ्रू नहीं गुजरेंगे तब तक जो है वो क्या उसे कहते हैं, वो उस मुकाम तक नहीं पहुंचेंगे जो आपने अपने लिए एलोकेट किया है। लास्ट बात, आपने जितना बड़ा विजन सेट किया है उतनी बड़ी तकलीफों के लिए तैयार हो जाएं। अगर आप तकलीफें नहीं सह सकते, अगर आप स्ट्रेस नहीं सह सकते, तो अपने गोल छोटे कर लें, अपनी अचीवमेंट छोटी कर लें, एक टिपिकल लाइफ जीना शुरू कर दें, 20-25 हज़ार रुपये वाली नौकरी करना शुरू कर दें। ठीक है, आराम से आए, खाया पिया, डकार मारा और रो गए। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। लेकिन अगर लाइफ में बड़ा विजन सेट किया है, अगर लाइफ में बड़े मुकाम पे पहुंचना है, भाई अगर छोटी सी एक चोटी है उसके ऊपर चढ़ना तो थोड़ी सी एनर्जी चाहिए होगी, लेकिन अगर K2 पे जाना है तो बहुत एनर्जी चाहिए, बहुत स्टेमिना चाहिए। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट आप पहुंचना कहाँ पे चाहते हैं। जिस जगह पे पहुंचना चाहते हैं वो डिफाइन करेगी कि कितना स्ट्रेस लेवल आएगा, कितने चैलेंजेस आएंगे। और अगर आप उन चैलेंजेस के लिए रेडी नहीं है तो यू विल नेवर बी एट दैट पॉइंट। बिल्कुल ऐसे आपने बहुत मतलब प्रैक्टिकल हमें बातें बताई हैं, और आपने अपनी लाइफ की एग्जांपल हमारे साथ शेयर की कि जो आपका ड्रीम था, जिस पे आपने इतनी एफर्ट और इतनी इन्वेस्टमेंट की, एनर्जी की, पैसे की, अपनी हर वक्त की, और जब वो कोलैप्स हो गया तो उसके बाद आपने हिम्मत नहीं आ रही, आप दोबारा से खड़े हुए, और माशाल्लाह अभी आप एक मिसाल बन के हमारे सामने हैं। और इस वक्त आप कंट्री हेड हैं अली आसिफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के प्रोजेक्ट के। तो ये एक छोटा मुकाम नहीं, छोटी पोजीशन नहीं, तो माशाल्लाह ताला ने आपको दोबारा से वो सब कुछ दिया, और बल्कि उससे बहुत ज्यादा बेहतर दिया। तो आपने बहुत ही अच्छी बात कि जब बहुत ज्यादा अच्छा होना होता है तो शायद उससे बहुत ज्यादा बुरा हमें महसूस हो रहा होता है। बिल्कुल ऐसे जैसे जब सवेरा होना होता है तो रात बहुत ज्यादा गहरी हो जाती है, वो वक्त होता है जब अंधेरा सबसे ज्यादा होता है और उसके बाद दिन निकल आता है। तो बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके हबीबुल्लाह। अगर आप कोई मैसेज देना चाहें तो यू आर फ्री टू डू इट, और मैं इसको वाइंड अप करना चाह रही हूँ, और वो हमारे व्यूअर्स का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगी जिन्होंने बहुत हौसले से हमें सुना और बड़े अच्छे क्वेश्चंस किए, और थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। और हबीब, अगर आप कोई मैसेज देना चाहें। अच्छा, मैसेज मेरा सिर्फ लोगों को ये है कि अपनी जिंदगी के अंदर जो है ना, सिर्फ एक छोटा सा मैसेज, अपनी जिंदगी के अंदर एक मकसद ले आए। अगर आपकी जिंदगी के अंदर मकसद नहीं है तो समझ लें कि आपके जिस्म के अंदर रूह नहीं है। अपनी लाइफ के अंदर एक मकसद लें, मकसद चाहे छोटा चाहे बड़ा है, इट डजंट मैटर, मकसद है। अपनी लाइफ के अंदर मकसद लें और फिर देखिएगा जिंदगी का मजा कितना आएगा आप। थैंक यू सो मच। बिल्कुल ऐसे मोहम्मद एहसन जो है उन्होंने एक लास्ट में हमें फिर मैसेज किया, मेरे ख्याल में अभी इश्क के इम्तहान और भी हैं और आप दोनों पर सलामती हो। बिल्कुल कैप्टन साहब, हम एग्री करते हैं, इब्तिदाई इश्क खैर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो वी आर रेडी फॉर दैट। और माशाल्लाह आपने हमारे साथ जो है माइंडसेट कोच हैं, और उन्होंने हमें बहुत पॉजिटिव बातें बताई, और उन्होंने बताया कि नेगेटिव सिचुएशन में भी आप किस तरह पॉजिटिव रह सकते हैं, किस तरह लेट गो करने की हैबिट को अपना सकते हैं, किस तरह माफ करने की फॉरगिवनेस जो है वो आपको उन्होंने ब्रीदिंग एक्सरसाइज के साथ बताई, और उन्होंने प्रॉपर कहा कि इसको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं, और आहिस्ता आहिस्ता आप जो नेगेटिव थॉट्स हैं और गुस्सा है और ये इस तरह का डिप्रेशन वाली चीज़ है उससे बाहर निकल सकते हैं। बहुत शुक्रिया हबीबुल्लाह, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपकी इस वैल्यूएबल बातों का। थैंक यू सो मच। टेक केयर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।